السلام علیکم ناظرین، 4 خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، کیو میکس سفائر، ساجد ریزیڈینسی، کیو میکس مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، ایم کے ٹاورز، پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد کے قریبی حسین مناظر میں چیوڑلہ کے دل میں ایک بے مثال جگہ کیو میکس فارم ہاؤس، تلنگانہ کا سب سے بڑا باکس کرکٹ گراؤنڈ، 50 سے زیادہ سپورٹس ایکٹیویٹیز، ہر عمر کے لوگوں کے لیے تفریح کا بہترین انتظام۔ صرف ایک نہیں، 2 شاندار سوئمنگ پولز، انڈور اور آؤٹ ڈور پلے ایریاز، شادی ہو، انگیجمنٹ، سانچک مہندی یا برتھ ڈے پارٹی، کیو میکس فارم ہاؤس ہر ایونٹ کے لیے بہترین تحفظ اور شاندار سیٹ اپ دیتا ہے۔ 500 مہمانوں تک کے لیے فل کراکری سیٹ اپ اور 2 الگ کچنز۔ ہمارا سپریٹ BBQ سیکشن آپ کے مہمانوں کے لیے خاص، 9 آرام دہ کمرے، 3 بڑے ہالز۔ کیو میکس فارم ہاؤس، آپ کے خاص لمحوں کا بہترین پتہ۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پتی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے، اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت۔ 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے، بائے جوہری، گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ پرائڈ انڈیا آپ کے لیے لائے ہیں ہائیڈرا، FTL اور بفر زون سے پاک پلاٹس، اسپاٹ رجسٹریشن کے ساتھ۔ آرکڈ ریزیڈینسی کی شاندار کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرکڈ ریزیڈینسی فیز 2، بالاپور میں فلی ڈیولپڈ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر، جس میں چلڈرنس پارک، لینڈسکیپ گارڈن اور مسجد جیسی بے شمار امینٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں۔ سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرکڈ ریزیڈینسی فیز 2، where life comes alive۔ مدینہ منورہ بس سانحے کے مرحومین کے 35 افراد خاندان کی منگل کی رات سعودی عرب روانگی۔ تلنگانہ حکومت کا وفد سعودی عرب پہنچ گیا۔ کونسل جنرل سے ملاقات، مہلوکین کی تدفین اور دوسرے امور پر تبادلہ خیال۔ حیدرآباد کی تیز رفتار ترقی کے لیے مرکز تعاون کرے، 2047 تک 3 ٹریلین معیشت کا نشانہ۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا خطاب، ممکنہ مدد کا مرکزی وزیر منوہر لال کھٹر نے دیا تیقن۔ می سیوا خدمات اب واٹس ایپ پر بھی، تیلگو اور اردو میں بھی سہولت۔ تلنگانہ کو ملک بھر میں پہلی ریاست کا اعزاز، وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی نے کیا آغاز۔ عبداللہ پور میٹ کے بریلینٹ انجینئرنگ کالج میں سرقے کی واردات میں ملوث 3 سارق گرفتار، 37 لاکھ روپے کی رقم ضبط۔ شہر کی مشہور بریانی ریسٹورنٹس کے مالکان کے مکانات پر IT دھاوے۔ میدک کے ٹیکمال سب انسپکٹر پولیس کی رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں تعاقب کے بعد ڈرامائی گرفتاری، گاؤں والوں نے منایا جشن۔
اور حاملہ بیوی کی علاج کے دوران موت سے دل برداشتہ شوہر کی خودکشی، شمس آباد میں افسوسناک واقعہ۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ مدینہ منورہ کے پاس ہوئے حادثے میں جاں بحق افراد کے 35 لواحقین منگل کی رات سعودی عرب روانہ ہو رہے ہیں۔ اس سلسلے میں منگل کی صبح سے دوپہر تک حج ہاؤس میں غیر معمولی سرگرمیاں دیکھی گئیں۔ مرحومین کے افراد خاندان کی بڑی تعداد حج ہاؤس میں موجود تھی۔ حج کمیٹی کے ایک عہدیدار صفی اللہ کی طرف سے میتوں سے متعلق بے حس ریمارک پر مرحومین کے لواحقین میں برہمی دیکھی گئی۔ ان کی برطرفی کا مطالبہ کیا گیا تھا، جس کے بعد ان کا تبادلہ کر دیا گیا۔ صدر نشین حج کمیٹی غلام افضل خسرو پاشا بیابانی نے بتایا کہ سعودی حکومت کی ہدایت کے مطابق خونی رشتہ رکھنے والوں کو ہی بھیجا جائے گا اور اس سلسلے میں انتظامات بھی کیے گئے ہیں۔ حج کمیٹی کے صدر نشین خسرو پاشا بیابانی نے بتایا کہ مہلوکین کے خاندان کے ارکان کی روانگی کے انتظامات کر لیے گئے ہیں۔ جملہ 38 رکنی قافلہ بشمول 3 حج کمیٹی کے ارکان منگل کی رات سعودی عرب کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ 38 کے من جملہ 35 مہلوکین کے خاندان کے ارکان ہیں۔ صدر نشین حج کمیٹی نے خانگی ٹور آپریٹرز کے ذریعے جانے والے بعض عازمین کے اپنے عمرہ کے سفر کو ملتوی کیے جانے پر کہا کہ اس سانحے کی وجہ سے اپنے عمرہ کے سفر کو ملتوی نہ کریں۔ انہوں نے ٹور آپریٹر سے بھی درخواست کی ہے کہ قافلوں کی روانگی کو جاری رکھیں۔ دیکھیے، جملہ ہر فیملی سے 2 آدمی کو ہم یہاں سے بھیج رہے ہیں۔ سعودی گورنمنٹ کے حساب سے ان کا ڈی این اے ٹیسٹ کرایا جائے گا۔ ہمیں دیر اس واسطے لگی کہ بلڈ ریلیشن بھائی باپ سنیب یا بھتیجا اس قسم سے چننا تھا، تو پچھلے رات بھر کل وہی ہوا کہ پہلے دوسرے عزیز و اقارب بھی آ گئے، سالے بھی آ گئے، تو سالے کا جو ہے وہاں پہ کیا بولتے ہیں ڈی این اے نہیں کیا جا سکتا، تو سگے بھائی کی ضرورت تھی۔ الحمدللہ اس کو سارٹ آؤٹ کر لیا گیا ہے اور تقریباً 35 آدمی ہو رہے ہیں ہر فیملی کے 2 حساب سے، تو بھی اور 2 فیملی کے لوگ ہمیں نہیں ملے۔ اور اس کے اندر جو آپ جو بتا رہے ہیں فگر، ہم ایک بدر کے بھی ایک صاحبہ کے بارے تھے، ان کو بھی بھیجا رہے ہیں، اور ایک ہبلی کے ان کو بھی بھیجا رہے ہیں۔ وہاں کے منسٹر نے بھی ریکویسٹ کیا ہے کہ وہاں سے بھی 2 آدمی گئے ہیں، تو ہم نہ ہی تلنگانہ بلکہ کرناٹکا کے بھی 2 اسٹیٹ سے 2 آدمی کو بھیج رہے ہیں۔ اور ہمارے پاس سے وقف بورڈ کا کوئی امپلائی نہیں جا رہا ہے، حج کمیٹی کے اسسٹنٹ ای او اور ایک ہمارے ان کے ساتھ ایک آدمی یہاں سے جائے گا، کیونکہ وہاں ایمبیسی کو بھی جانا پڑے گا، وہاں پر دوسرے کام بھی رہیں گے۔ یہاں سے صرف حج کمیٹی سے جا رہے ہیں، وقف بورڈ سے کوئی نہیں جا رہا۔ سعودی عرب مدینہ منورہ کے پاس ہوئے بس سانحے کے سلسلے میں سعودی عرب پہنچے تلنگانہ حکومت کے وفد نے جدہ میں ہندوستانی قونصل جنرل فہد احمد خان سوری سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے دوران جاں بحق ہونے والوں کے افراد خاندان کی آمد کے علاوہ میتوں کے حصول اور دوسرے امور کی ادائیگی کے سلسلے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفد میں تلنگانہ کے وزیر اقلیتی بہبود محمد اظہر الدین، مجلس کے رکن اسمبلی محمد ماجد حسین، اقلیتی بہبود کے سیکریٹری بی شفیع اللہ بھی شامل ہیں۔ واضح ہے کہ صدر مجلس بیرسٹر اویسی نے بھی اس واقعے کے سلسلے میں سعودی عرب میں متعین سفارتکاروں سے بات چیت کرتے ہوئے ممکنہ تعاون کی اپیل کی تھی۔ سعودی عرب کے جدہ اور ریاض کے سفارتخانے سعودی حکومت کے ساتھ اس معاملے میں رابطے میں ہیں۔ حج کمیٹی کے سی ای او اور اردو اکیڈمی کے سیکرٹری ڈائریکٹر محمد صفی اللہ کا مدینہ بس سانحے کے مہلوکین سے متعلق کیے گئے ریمارکس پر تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ حکومت کی طرف سے اس سلسلے میں احکام بھی جاری کیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے ٹیمرس کے صدر نشین فہیم قریشی نے حج ہاؤس پہنچ کر بس سانحے کے افراد خاندان کے ارکان کے سعودی عرب جانے کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے فہیم قریشی نے واضح کیا تھا کہ جو بھی مرحومین کے تعلق سے غلط بیانی کی گئی ہے وہ بدبختانہ ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ 48 گھنٹوں میں انہیں عہدے سے ہٹا دیا جائے گا، لیکن 12 گھنٹوں کے اندر ہی صفی اللہ کے تبادلے کے احکام جاری کر دیے گئے۔ بتایا گیا ہے کہ صفی اللہ کا محکمہ برقی میں تبادلہ کر دیا گیا۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی سرپرستی میں رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے مدینہ منورہ کے پاس حادثے میں جاں بحق ہونے والی 2 خواتین آمنہ بیگم اور انیس فاطمہ کے خاندان کے 2 ارکان
मुख्तार पाशा और मोहम्मद फैसल के सऊदी अरब जाने के इंतजाम किए हैं। आज शाम मुख्तार पाशा और मोहम्मद फैसल सऊदी अरब के लिए रवाना होंगे। गुज़िश्ता रोज़ रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मरहूमीन के अफराद ख़ानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया था और इसी वक्त उन्होंने ख़ानदान के 2 अरकान को सऊदी अरब रवाना करने का तयक़ुन दिया था और आज उनके लिए वीज़े और फ़िज़ाई टिकट का इंतज़ाम कर दिया गया। मरहूमीन के अफराद ख़ानदान ने रुकन असम्बली अहमद बलाला से बरवक्त इक़दामात पर इज़हार तशक्कुर किया है। लाला साहब आए कल, जिम्मेदारी लिए 2 जनों को भेजने की, मेरे भाई को और मेरी बहन को, तीनों को भेज रहे। आज अल्हम्दुलिल्लाह टिकट भी मिल गया, वीज़ा भी मिल गया। जो अहमद बलाला साहब है उन्होंने हमारा काम कर लिया, हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। वालेकुम, मेरा बेटा है लाला साहब का शुक्रिया बहुत बहुत। हम लोगों के वास्ते इतनी बड़ी वो करे, हमारी भावज हमारी भांजी थी उसके अंदर, बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया उनका, मेहरबानी आपकी बहुत बहुत। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने मदीना मुनव्वरा में पेश आए बस हादसे में जाँ बहक अफराद की पसमानदगान से ताज़ियत का इजहार किया और इस वाक़े पर गहरा दुख जाहिर किया है। फोरम के सदर मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मोहिउद्दीन फ़हीम और दीगर ज़िम्मेदारान की जानिब से एक मुश्तरका बयान जारी करते हुए फोरम के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार ने कहा कि इस हादसे में जाँ बहक हैदराबाद के 45 ज़ायरीन जो शहदा का दर्जा रखते हैं के लिए दुआए मग़फ़िरत की गई। इस हादसे पर वज़ारत ख़ारजा, हुकूमत हिंद और हुकूमत तेलंगाना को मुतवज्जह करते हुए मौसर नुमाइंदगी करने पर सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की सताइश की गई। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से रियासती वज़ीर अक़लियती बहबूद की ज़ेर क़यादत वफ़द को सऊदी अरब रवाना किए जाने और महलूकीन के विरसा को एक्स ग्रेशिया के ऐलान पर रियासती हुकूमत से ममनूनियत का इजहार किया गया। खलीजी ममालिक में काम करने वाले, इसके अलावा हज उम्र पर रवाना होने वाले आज़मीन ज़ायरीन के मसाइल के हल के लिए रियासत केरला के खतूत पर एक अलहदा वजारत के क़याम का हुकूमत से मुतालबा किया गया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद की तेज़ रफ्तार तरक्की के लिए मरकज़ से मदद तलब की है। शहर के एक होटल में खिताब करते हुए अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर्स के इलाकाई इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मरकज़ी वज़ीर मनोहर लाल खट्टर से हैदराबाद की तरक्की के लिए ताउन की अपील की। वज़ीर आला ने कहा कि तेलंगाना 2047 तक 3 ट्रिलियन मईशत के नशाने को लेकर काम कर रहा है। हमारा मकसद है कि तेलंगाना पूरे मुल्क के लिए एक मॉडल बने। उन्होंने कहा कि हम हैदराबाद की तरक्की के साथ साथ भारत फ्यूचर सिटी को भी तरक्की दे रहे हैं। रियासत में ड्राई पोर्ट बनाने का भी मंसूबा है। वज़ीर आला ने कहा कि हिंदुस्तान की रियासतों से हमारा मुकाबला नहीं है, बल्कि हमारी मुसाबिकत सिंगापुर, टोक्यो और न्यूयॉर्क से है और इसके लिए हमें मरकज़ के ताउन की ज़रूरत है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद में 3000 इलेक्ट्रिक बसों का भी मंसूबा है। उन्होंने बताया कि 9 दिसंबर को 2047 विजन डॉक्यूमेंट जारी किया जाएगा। उन्होंने मरकज़ी वज़ीर से दरख्वास्त की कि हैदराबाद की तरक्याती कामों को मंजूरी दें। इस मौके पर मरकज़ी वज़ीर ने भी खिताब किया। वज़ीर आला ने मरकज़ी वज़ीर मनोहर लाल खट्टर से तेलंगाना के अहम प्रोजेक्ट्स मूसा नदी के तज़ीन और मेट्रो रेल की तोसी के प्रोजेक्ट को भी मंजूरी देने की दरख्वास्त की। उन्होंने कहा कि भारत फ्यूचर सिटी हिंदुस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा। अर्बनाइजेशन अगर होना है, एक तरीका से अगर डेवलपमेंट आना है, तो अर्बन मिनिस्ट्री हैज टू प्लान फॉर समथिंग, पर्टिकुलर मेट्रोपॉलिटन सिटीज अगर हम डेवलप करते गए, ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग अगर बनाए तो इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकते हैं। पूरा दुनिया कोविड के बाद चाइना +1 कंट्री के लिए इन्वेस्टमेंट्स के लिए ढूंढ रहा है। चाइना +1 इज ऑल्टरनेट इज इंडिया। तो वो काम करना है तो हम लोग अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी, पोर्ट कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, वाटर, पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब सारे करना है। तो आप खुद, आप एक्सपीरियंस्ड पर्सन, सीजन्ड पॉलिटिशियन, आप मुख्यमंत्री बहुत साल किए, मुख्यमंत्रियों का तकलीफ सबसे ज्यादा आप जानते हैं। मोदी जी भी पहले 12 साल मुख्यमंत्री काम किए, गुजरात मॉडल बनाए, तो आप दोनों को पता है मुख्यमंत्रियों का तकलीफ कैसे रहता है। और केंद्र सरकार ने अगर साथ नहीं दिए तो हम तरक्की करना इतना आसान नहीं है। जहां पर स्कोप है वहां पर आप एंकरेजमेंट भी करना है। और यूर सीनियर, हमारे जैसा नौजवान को आप मदद दिए तो हम बड़ा भाई समझ के मोदी जी को हम सीधा सीधा कह दिए, इस देश का प्रधानमंत्री हर मुख्यमंत्री के लिए बड़ा भाई है। तो बड़ा भाई बड़ापन दिखा के हमको मदद दिए तो हम तरक्की कर सकते।
10% इकोनॉमी हम लोग कंट्रीब्यूट करना चाहता है। तो उसके लिए मेरा मेट्रो रेल आप मंजूर करना है, मेरा मूसी रिवर डेवलपमेंट फ्रंट के लिए आप मदद देना है, मेरा रीजनल रिंग रोड के लिए, मेरा रेडियल रोड्स के लिए, ये हैदराबाद ड्रिंकिंग वाटर के लिए। पोल्यूशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर। दिल्ली में सब कुछ है, मगर पोल्यूशन के साथ सब कुछ बंद पड़ रहा है। स्कूल से लेकर सरकार दफ्तर तक, पार्लियामेंट तक हम पोल्यूशन की वजह से हम दिल्ली बंद करके चलाना पड़ रहा है। मरकजी वजीर मनोहर लाल खट्टर ने रियासत तेलंगाना की तरक्याती प्रोजेक्ट्स बिलखुसूस मेट्रो और मूसा नदी प्रोजेक्ट के सिलसिले में मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया है। हैदराबाद में अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर्स के इजलास से खिताब करते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि जल्द ही मरकजी हुकूमत मेट्रो प्रोजेक्ट में अपनी हिस्सेदारी को पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि मूसा नदी की तरक्की और तज़यीन के लिए जो मंसूबा बनाया गया है, इसके पहले मरहले का काम भी जल्द शुरू होगा। मरकजी वजीर का कहना था कि पानी के ट्रीटमेंट के बाद इसे मूसा नदी में छोड़ना जाना चाहिए और मरकजी वजीर ने तयक़ुन दिया कि तेलंगाना के मसाइल को हल किया जाएगा। मी सेवा हुकूमत ने व्हाट्सएप पर मी सेवा सर्विस का आगाज किया है। इसके जरिए हर साल तकरीबन 10 लाख नौजवानों को मसनूई ज़हानत और दीगर इख्तिराई टेक्नोलॉजी से आरास्ता किया जाएगा। इसके लिए सरकर्दा IT इदारे मेटा और महकमे मी सेवा ने हुकूमत से इश्तराक किया है। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सनतें डी सीदर बाबू ने होटल ताज कृष्णा में इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना डिजिटल गवर्नेंस के लिए एक मिसाली रियासत होगी। उन्होंने पिछली BRS हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि इख्तिराई शोबे को फ़रोग़ देने के बजाय मुतलक़ुल अनानी के जरिए हुकूमत की गई। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से सरकारी कामकाज में मजीद बेहतरी आएगी। उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप के जरिए 38 सरकारी महकमों की 580 शहरी खिदमात दस्तियाब हो जाएंगी। उन्होंने बताया कि ये खिदमात तेलुगु और उर्दू ज़बान में भी दस्तियाब रखे गए हैं। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी संजय कुमार, कलेक्टर हैदराबाद हरिचंदना, मी सेवा के कमिश्नर रवि कुमार, मेटा के नुमाइंदे नताशा और दीगर ओहदेदारों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। वजीर IT ने कहा कि तेलंगाना मुल्क की पहली रियासत होगी जो शहरियों की खिदमात को व्हाट्सएप पर दस्तियाब कर रही है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी ने कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग के साथ वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में याददाश्त मफाहमत पर दस्तखत किए हैं। इस याददाश्त मफाहमत के तहत BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी डिजिटल यूनिवर्सिटी को तरक्की देगी और टेक्नोलॉजी के जरिए मेयारी तालीम को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने भी वाज़ेह किया है कि हुकूमत तालीमी निज़ाम में टेक्नोलॉजी और दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक तब्दीली लाएगी। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला और वज़ीर फाइनेंस भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि 2047 तेलंगाना राइजिंग फेस्टिवल का बड़े पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया जाएगा। SLBC के सेमाही इजलास से खिताब करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि हम पॉलिसियों का भी ऐलान करेंगे। उन्होंने कहा कि एक जदीद, जामे और मुस्तकबिल के लिए तैयार तेलंगाना बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप और MSME को बड़े पैमाने पर फ़रोग़ दें, इससे रोज़गार के मौक़ों में इजाफा होगा। HMA के जरिए 13,000 करोड़ मीटर अंदरूनी सड़कों की तामीर से रियासत का मौशी मंजरनामा बदल जाएगा। नए वज़ीर आला ने कहा कि 2047 तेलंगाना राइजिंग फेस्टिवल का 8 और 9 दिसंबर को बड़े पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया जाएगा और इस दौरान तमाम पॉलिसियों का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने बैंकर्स से इस अजीम तकरीब में बड़ी तादाद में शिरकत की अपील की। उन्होंने बैंकर्स को मशवरा दिया कि तेलंगाना के देही मईशत को तब्दील करने के लिए पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोसेसिंग यूनिट्स, माइक्रो क्रॉप इरिगेशन और इससे मुंसलिक शोबों के लिए बैंक खर्चात में इजाफे की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि ख़वातीन उनकी मौशी सरगर्मियों को तोसी देने के लिए तेज़ी से दोबारा माली ताउन फराहम करने की ज़रूरत है। नए वज़ीर आला ने कहा कि महिला शक्ति स्कीम एक ताकतवर प्लेटफॉर्म है और बैंकों का इसे इस्तेमाल करना चाहिए। बैंकों से दरख्वास्त की गई है कि पाम ऑयल और दीगर फसलों को भी मज़ीद मदद फराहम करें। निजामाबाद पुलिस इनकाउंटर में हलाक नौजवान शेख रियाज के खानदान को डबल बेडरूम मकान अलॉट किया जाएगा और इस नौजवान की अहलिया को सरकारी इदारे में आउटसोर्सिंग मुलाजिमत दी जाएगी। हुकूमत के मुशीर बराए SC, ST और BCO माइनॉरिटीज़ मोहम्मद अली शब्बीर ने ये ऐलान किया। उन्होंने महलूक के बच्चों की तालीम की जिम्मेदारी भी कबूल की। निजामाबाद में 20 अक्टूबर को पुलिस के हाथों शेख रियाज की हलाकत हुई थी। एक कांस्टेबल की हलाकत के जुर्म में पुलिस की जानिब से गिरफ्तारी के बाद दवाखाने में पुलिस की निगरानी में ज़र इलाज शेख रियाज का मुश्तबा हालत में पुलिस काउंटर कर दिया गया था। महलूक की वालिदा, अहलिया और 2 यतीम बच्चों को लेकर निजामाबाद के एक वफ्द ने
मोहम्मद अली शब्बीर से मुलाकात की और एक याददाश्त पेश की। इस नुमाइंदगी पर हमदर्दाना गौर करते हुए उन्होंने मुतासरा खानदान को डबल बेडरूम मकान अलॉट करने और उनकी अहलिया को सरकारी इदारे में मुलाजिमत फराहम करने का ऐलान किया। उन्होंने बच्चों की तालीम की जिम्मेदारी भी कबूल की। वफ्द ने उनका शुक्रिया अदा किया। बीआरएस पार्टी के लीडर्स ने आज मुख्तलिफ अजला का दौरा करते हुए किसानों से मुलाकात की है। केटीआर ने सिरसल्ला का दौरा किया है और किसानों से मुलाकात की। केटीआर ने किसानों की हालत पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि कांग्रेस की हुकूमत और बीजेपी के एमपीज किसानों के लिए कुछ भी करने से कासिर हैं। केटीआर ने बोधन हल्के की अलकापुर देहात का भी दौरा किया। केटीआर ने धान का मुआयना किया और उनका कहना था कि किसानों के साथ नाइंसाफी की जा रही है, उन्हें मुमकिन मदद फराहम नहीं की जा रही है। बीआरएस के रुकन असम्बली और साबिक वजीर हरीश राव ने भी आज वरंगल मार्केट में किसानों से मुलाकात की और इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि रियासत से बीजेपी के 8 एमपीज होकर भी नाकारा हैं। कांग्रेस के 8 एमपीज का भी यही मौक़िफ है। हरीश राव ने सवाल किया कि आखिर ये 16 एमपीज तेलंगाना के लिए क्या कर रहे हैं? कपास के किसान क्यों खुदकुशी कर रहे हैं? क्या मरकज और रियासत को इन पर रहम नहीं आता? दोनों पार्टियों की ये 16 अरकान पार्लियामेंट सिर्फ बीआरएस और केसीआर पर तनकीद तक महदूद होकर रह गए हैं। न तो बीजेपी और न ही कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट तेलंगाना में किसानों की हालत पर मरकज से और न ही रियासती हुकूमत से सवाल करते हैं। बीआरएस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है और उनके लिए जदोजहद करती रहेगी। रियासती वजीर ज़राअत टी नागेश्वर राव ने सीसीआई के सीएम डी ललित कुमार गुप्ता से मुलाकात की है। इस मुलाकात में कपास की खरीदी और दूसरे उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वाज़ेह है कि कपास की खरीदारी और किसानों के मसाइल को लेकर बीआरएस पार्टी की तरफ से मुसलसल एहतजाज जारी है। इनहराफ करने वाले अरकान असम्बली से बातचीत के लिए तेलंगाना असम्बली स्पीकर प्रसाद कुमार ने शेड्यूल जारी किया है। 19 नवंबर को भद्राचलम के रुकन असम्बली पी वेंकटराव, जगतियाल के रुकन असम्बली संजय को तलब किया गया, जबकि 20 नवंबर को बांसवाड़ा के रुकन असम्बली पोचाराम श्रीनिवास और श्रीलिंगमपल्ली के रुकन असम्बली ए गांधी को तलब किया गया है। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्तों में फैसला लेने की तेलंगाना स्पीकर को हिदायत दी थी। तेलंगाना जल मंडली के एमडी अशोक रेड्डी ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के हाथों जल संचय जन भागीदारी अवार्ड हासिल किया है। दिल्ली में कौमी आबी अवार्ड तकसीम किए गए। वजारत जल शक्ति और आबी वसाइल की तरफ से बेहतरीन मुजाहरा करने वाली रियासतों को अवार्ड से नवाजा गया। इस अवार्ड के तहत 2 करोड़ रुपए मुख्तलिफ प्रोग्रामों के लिए भी दिए जाएंगे। मजलिस की नुमाइंदगी पर शादी मुबारक चेक्स की तकसीम जारी है। दारुस्सलाम में रुकन असम्बली कारवान कौसर महिउद्दीन ने 117 मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में चेक्स तकसीम किए। गोलकोंडा मंडल के तहत इन चेक्स की मंजूरी अमल में आई थी। इन चेक्स की जुमला रकम 1,17,13,572 बताई गई है। इस्तेफादा कुनंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली से इज़हार तशक्कुर किया है। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर पत्थरगट्टी डिवीजन के इलाके दीवान देवड़ी में 1,60,00,000 रुपए लागती तरक्याती कामों का आगाज हुआ है। रुकन असम्बली चार मीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने वीडीसीसी रोड के कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। मीडिया से बात करते हुए मीर जुल्फ़िकार अली ने बताया कि मुकामी ताजिरों ने सदर मजलिस से इस बारे में बताया था, जिस पर उनके एमएलए फंड से सीसी रोड के काम किए जा रहे हैं, जिसे जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। इस मौके पर ताजिरों और मुकामी अफराद ने रुकन असम्बली चार मीनार मीर जुल्फ़िकार अली और रुकन बलदिया सुहेल महमूद कादरी की गुलपोशी की। इस सिलसिले में मुकामी अफराद और ताजिरों ने सदर मजलिस से इज़हार तशक्कुर किया है। इस मौके पर मजलिस के इब्तदाई सदूर और मोतमदीन मौजूद थे। रुकन कौंसिल मिर्जा रहमत बेग ने सदर मजलिस की हिदायत पर चीफ इंजीनियर बलदिया के साथ तरक्याती कामों के सिलसिले में एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इजलास जीएचएमसी के दफ्तर वाक़ टैंक बंड पर मुनक्किद हुआ। इस मौके पर रुकन बलदिया नवाजुद्दीन अहमद के अलावा दूसरों ने शिरकत की। मिर्जा रहमत बेग ने इस मौके पर सदर मजलिस का एक मकतूब में मज़कूरा ओहदेदार के हवाले किया। मिर्जा रहमत बेग ने जोनल कमिश्नर साउथ जोन एस श्रीनिवास रेड्डी और जीएचएमसी ओहदेदार तोपंत की हमराह तरक्याती कामों के अलावा दूसरे उमूर पर बातचीत की। इस मौके पर महकमा आबरसानी के डायरेक्टर अब्दुल खादर विनोद भार्गव के अलावा जीएचएमसी और कॉरपोरेटर नवाजुद्दीन अहमद भी मौजूद थे। मिर्जा रहमत बेग कादरी ने सदर मजलिस की हिदायत पर जोनल कमिश्नर बलदिया और खुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के ओहदेदारों के हमरा एक इजलास मुनक्किद किया, जिसमें तमाम ज़र इल्तिवा और मास्टर प्लान के बारे में तफसीली तबादला ख्याल किया गया।
सदर मजलिस रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन की निगरानी में जहानुमा डिवीजन के तेगलकुंटा में सीसी रोड और सीवरेज लाइन्स के काम मुकम्मल हो गए हैं, जिसकी लागत 22 लाख रुपए बताई जाती है। इस सिलसिले में मुकामी अफराद ने सदर मजलिस से मुतालबा किया था, जिस पर जोनल कमिश्नर बलदिया से नुमाइंदगी करके मंजूरी हासिल की गई थी। इस मौके पर बलदिया के अहदेदारों के अलावा मजलिस के इब्तदाई सदूर और मुतमदीन मौजूद थे। शहर हैदराबाद की बिरयानी और दूसरी अशिया के लिए मशहूर रेस्टोरेंट्स के मालिकान के मकानात पर इनकम टैक्स के धावे किए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक आज सुबह शागौस, महफिल और पिस्ता हाउस रेस्टोरेंट्स के मालिकान के मकानात के अलावा दूसरे 30 मकामात पर एक साथ धावे हुए हैं। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक मुबैना टैक्स की अदम अदायगी के सिलसिले में यह धावे किए गए। आखिर खबरें मिलने तक भी धावों का सिलसिला जारी था और अहम दस्तावेजात को जब्त किए जाने की इत्तला है। अब्दुल्लाहपुर में सीसीएस पुलिस ने बैन रियासती घरेलू सारिकीन की 3 रुकनी टोली बशमूल एक जुवेनाइल को गिरफ्तार किया है। एलबी नगर डीसीपी ने बताया कि अब्दुल्लापुर में पुलिस स्टेशन हदूद के ब्रिलियंट इंजीनियरिंग कॉलेज में इन सारिकों ने 9 अक्टूबर को सरक़े की वारदात अंजाम दी थी। 10 अक्टूबर को इस सिलसिले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी। सारिकों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने खुसूसी टीमें तश्कील दी थी और इस सिलसिले में अब गुजरात के साकिन राज मनोहर, इंदौर के साकिन ऋतिक को गिरफ्तार किया गया है। ऋतिक को कोत्तापेट चौराहे के पास गिरफ्तार किया गया। इस टोली का अहम सरगना गुजरात का साकिन दिनेश मोहित और इसके साथी अरुण मोहित, विलास चौहान मफरूर बताए गए हैं। इस टोली के कब्जे से 37 लाख रुपए की नकद रकम जब्त की गई है। पुलिस ने बताया कि गुजरात में भी खुसूसी टीम को भेजा गया था। 1000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की जांच के बाद इन मुलजिमीन की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। मेदक जिले की टेकमाल सब इंस्पेक्टर पुलिस को ड्रामाई अंदाज में रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। तफसीलात के मुताबिक सब इंस्पेक्टर राजेश ने पुलिस स्टेशन में एक शख्स से 30,000 रुपए रिश्वत तलब की थी। इस सिलसिले में महकमे इंसदाद और रिश्वत को भी शिकायत की गई थी और जब एसीबी के अहदेदार पुलिस स्टेशन पहुंचे, सब इंस्पेक्टर राजेश भागने की कोशिश कर रहा था। एसीबी के अमले ने ताक़ुब के बाद सब इंस्पेक्टर राजेश को पकड़ लिया और इसे पुलिस स्टेशन लाया गया। सब इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी की इत्तला आम होते ही गाँव वालों की बड़ी तादाद पुलिस स्टेशन के पास जमा हो गई और आतिशबाजी की। शमशाबाद में पेश आए अफसोसनाक वाक़े में बीवी की मौत से दिलबर्दाश्ता शौहर ने खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक जुड़वा बच्चों की हामिला खातून के इलाज के दौरान वो फौत हो गई थी और बीवी और होने वाले बच्चों की मौत से दिलबर्दाश्ता होकर शौहर ने खुदकुशी कर ली। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। बताया जाता है कि श्रवी 8 माह की हामिला थी, ताहम उसकी तबीयत बिगड़ जाने से अतापुर की एक हॉस्पिटल में शरीक कराया गया था। डॉक्टर्स ने जुड़वा बच्चों की तौसीक की थी, लेकिन इलाज के दौरान श्रवी की मौत हो गई। बेगमपेट बस स्टॉप के पास लोड से भरे हुए ट्रक ने थार गाड़ी को टक्कर दे दी। इस हादसे में ट्रक उलट गया। थार गाड़ी में सवार बाज अफराद के जख्मी होने की इत्तला मिली है। उन्हें करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। मुतल्लिका पुलिस तहकीकात कर रही है। शामिरपेट पुलिस स्टेशन हदूद में खातून के गले से मंगलसूत्र छीने जाने का वाकया पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक तेगलकुंटा में जब खातून चहलकदमी के लिए जा रही थीं, बाइक सवार 2 रहजनों ने उसके गले से मंगलसूत्र छीनकर फरारी इख्तियार की। इस वाक़े का सीसीटीवी भी सामने आया है। खातून की शिकायत पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। मेरचल जिले के कुशाईगौड़ा पुलिस स्टेशन हदूद कापरा नेताजी नगर में नए कायम किए गए गौतम मॉडल स्कूल को लेकर मौसूला शिकायत के तनाजुर में इंसानी हकूक़ कमीशन के रुकन आई करुणाकर और दूसरों ने स्कूल का मुआयना किया। कमीशन के अरकान ने स्कूल की इमारत, सहूलतों, पार्किंग की सहूलत और दूसरे अहम उमूर का भी जायजा लिया। इस मौके पर कुशाईगौड़ा पुलिस के अहदेदार भी मौजूद थे। स्कूल इंतजामिया को भी जरूरी हिदायत दी गई। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक
गौर नजर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ जिया एनक्लेव क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। मदीना मुनव्वरा बस सानेह के मरहूमीन के 35 अफराद खानदान की मंगल की रात सऊदी अरब रवानगी। तेलंगाना हुकूमत का वफ्द सऊदी अरब पहुंच गया। कौंसल जनरल से मुलाकात, महलूकीन की तदफीन और दूसरे उमूर पर तबादले ख्याल। हैदराबाद की तेज रफ्तार तरक्की के लिए मरकज ताउन करे। 2047 तक 3 ट्रिलियन मईशत का निशाना। वजीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। मुमकिना मदद का मरकजी वजीर मनोहर लाल खट्टर ने दिया तयक़्क़ुन। मी सेवा खिदमात अब व्हाट्सएप पर भी, तेलुगु और उर्दू में भी सहूलत। तेलंगाना को मुल्क भर में पहली रियासत का एजाज। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने किया आगाज। अब्दुल्लापुर मेट के ब्रिलियंट इंजीनियरिंग कॉलेज में सरखी की वारदात में मुलविस 3 सारिक गिरफ्तार। 37 लाख रुपए की रकम जब्त। शहर की मशहूर बिरयानी रेस्टोरेंट्स के मालिकान के मकानात पर IT धावे। मेदक के टेकमाल सब इंस्पेक्टर पुलिस की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ताक़ुब के बाद ड्रामाई गिरफ्तारी। गांव वालों ने मनाया जश्न। और हामिला बीवी की इलाज के दौरान मौत से दिल बर्दाश्ता शौहर की खुदकुशी। शमशाबाद में अफसोसनाक वाक़या। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV खबरनामे का यहीं पर अख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज़।